My name is Tilka Singh and I am truly delighted to be here with you all today. The school is very special to me because I am also an alumna of this very institute. It feels wonderful to be back here, not as a student this time, but to share something important with you all today that I learned being a law student. I am currently an associate of the Pro Bono Club, which has been established under the न्याय scheme of the Government of India. Now you might wonder what this scheme is. न्याय means friend of justice. Through this scheme, the government encourages lawyers and law students to provide legal help free of cost to the deprived section of the society. Under this scheme, the Pro Bono Club was established by Ministry of Law and Justice. The club symbolizes the noble principle that justice should not be a privilege of the few, but a right to all. The club's objective is to bridge the gap between law and society and uplift the vulnerable sections of the society, which includes children and women. The main objective is to make sure everyone understands the basic idea of rule of law, which means that no one is above the law and the same law applies to everyone equally. This principle ensures fairness and justice in our society. Children, just like adults, have rights. These include the right to education, right to be safe, right to grow in a healthy environment, and to be protected from harm. But sadly, children are also vulnerable to many dangers, including abuse and exploitation. This brings me to why we are here today, the POCSO Act. The POCSO Act is a special law made to protect children from sexual offences. It is necessary because it gives children a strong legal shield and ensures that their safety and dignity are protected. With that, I welcome you all to the workshop. I hope you will pay attention to it. You will interact with us, ask questions and share your thoughts during the session for your better understanding. Because this workshop is for you. So let us start. सबसे पहले क्या बात करेंगे? सबसे पहले क्या वैसे आप सबको पता है डच क्या हुआ है? तो डच बेसिकली होता है आप किसी भी चीज के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट में आ गए हैं. दो टाइप के टच होते हैं. एक गुड टच जो आपको सेफ, प्रोटेक्टिंग और कम्युनिकेटिव फील कराता है. जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको हक कर रहे हो या टीचर आपको एप्रिशिएट करते हैं आपकी बैक को पैंट करके. आपको अच्छा लगता है कि नहीं? यस और नो? थोड़ा प्लीज बोलो. यस. एंड गाइड टच होता है जब आप बहुत अनकम्फर्टेबल रहते हो, बहुत डरे से रहते हो, किसी का टच आपको अच्छा नहीं लगता, आप बस ये सोचते हो कि बस आपको छुए ना, वो होता है ना बैड टच. अब हम लोगों ने दोनों टाइप के टचेस पर जाएंगे. कोई एग्जाम्पल लेना इसके अलावा गुड टच है बैड टच का. Anyone of you? कोई भी नहीं? चलो ठीक है. फिर इसके बाद आ रही है कि अगर कोई आपको बैड टच कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप में से किसी के पास आंसर्स नहीं है? चलो मैं बताऊँ. अगर आपको कोई बैड टच करता है, आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो, तो आप किसके पास जाओगे? आपके आसपास के इमेजिनरी सर्कल होता है. ये सर्कल हो सकता है 2 मीटर का हो. इसके अंदर जितने भी लोग अलाउड है, जैसे तो हमारे आसपास एक इमेजिनरी सर्कल होता है जिसमें आप सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इंक्लूड करते हो. जैसे कि आप अपने मम्मी पापा को मिलते हो, अपने सिबलिंग्स को मिलते हो, ग्रेट पेरेंट्स को मिलते हो, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं. ये होता है आपका सेफ सर्कल जिसके आसपास आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो. आप बिना किसी झिझक कुछ भी उनसे शेयर कर सकते हो. तो अगर आपको कभी भी कोई चीज अनकंफर्टेबल लग रही है या कोई आपको बैक टच कर रहा है, तो आप सबसे पहले जाके अपने सेफ सर्कल को बनाओ और उनको बताना है और उनको बोलना है कि मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी है. क्योंकि आप अगर चुप रहोगे तो सामने वाला
आपके साथ फिर कई चीजें पसंद है। अब वो आपके सिर्फ से आपको कोई बैटेज कर नहीं सकता, ये बात तो क्लियर हो। फिर आपके प्राइवेट पार्ट पे आ गए। प्राइवेट पार्ट वो पार्ट के वो आपकी स्विमिंग पूल या अंडरवेयर से कवर होते हैं, इंक्लूडिंग योर माउथ। ये ऐसे पार्ट है जो कोई भी टच नहीं कर सकता है। आप किसी को नहीं अलाउ कर सकते इसे टच करने के लिए। क्या आपके फ्रेंड्स या कोई स्ट्रेंजर पार्ट को टच कर सकता है? यस और नो? एग्जैक्टली, कोई नहीं टच कर सकता। बट इसमें भी दो इंस्टेंसेस हैं। एक है डॉक्टर, लेकिन तभी जब वो आपको रीड कर रहे हो और वो भी आपके पेरेंट्स के प्रेजेंस में। एंड दूसरा है आपके पेरेंट्स जब वो आपकी हेल्प कर रहे हो। ओके, इसके बाद वो हावी है कि अगर कोई आपको पैटर्न्स करता है या आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है तो आप करेंगे क्या? इससे बचने के क्या तरीके? तो वी हैव पीस स्टैंड्स को private parts are private, nobody is allowed to touch it. Repeat after me. Private parts are private. Private parts are private. And nobody is allowed to touch it. Always remember that your body is yours and is always yours. No means no. There are no secrets from parents. We can do something. अच्छा, ये लास्ट लाइन से आप क्या समझते हो? Anyone want to answer? From the last line मेरे को तो समझ में आता है कि अगर आप कुछ कहोगे नहीं तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, और अगर आप कभी कुछ बोलोगे नहीं, किसी से शेयर ही नहीं करोगे तो फिर वो अगर आपकी बात किसी को पता ही नहीं होगी तो फिर वो आपका किसी तक कैसे पहुँचाएगा या आपको कैसे हेल्प करेगा, या जिसने भी आपको परेशान किया है उसे कैसे परेशानी मिलेगी। Exactly. अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है या करने की कोशिश की है वो किसी और के साथ भी सही चीज करेगा, और हो सकता है वो आपके साथ फिर वही चीज करे। तो सबसे पहले जब आप रिपोर्ट करते हो तो वो आप उस एक्ट को वहीं पे रोकते हो, वो उससे आगे बढ़ता नहीं है। अब इससे आगे अगर कॉन्फिडेंस आता है कि आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। अब नो कैसे बोलोगे आप? आपको पता है अगर वो बहुत पावरफुल है, अगर आप किसी को लोग कहते हो तो उसके अंदर हिम्मत नहीं आ सकती है कि वो आपसे कुछ भी गलत करे। और मेरी आवाज इतनी तेज है कि लास्ट तक सुनाई दे रही हो, सुनाई दे रही है कि नहीं? तो अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं चिल्ला सकती हूँ नो। आप चिल्ला सकते हो कि नहीं? बोलो नो मीन्स नो। वेरी गुड। अब इसके बाद शिवरांशी will tell you about types of offenses which are covered under the POCSO Act. So, hello everyone. My name is Shivranjini Prabir. I'm a first year law student in University of Lucknow. And अब हम move on करते हैं आज की डेट में सबसे serious subject की तरफ. So this requires our full attention. So are we ready? मैंने सुना था इस ब्रांच के बच्चे सबसे की आवाज नहीं आएगी। Are we ready? अब आ रहा ना मजा। इसी के अंदर आता है setting our boundaries. Before doing offenses, हमें सबसे पहले सीखना है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हमारा 1 मीटर का सर्कल, एक इमेजिनरी सर्कल इमेजिन करते हैं, वो हमारा पर्सनल स्पेस होता है। उसके अंदर किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं होती। Maybe a friend, maybe a senior, maybe a teacher, maybe some relative at home. इस सर्कल सिर्फ मेरा सर्कल है and very trusted adults are allowed in. अब हम बढ़ रहे हैं actual offenses की तरफ. So POCSO Act 2012 is like a shield that the government has created for all of you to be protected by any kind of sexual offenses. अरे दीदी 4 बार बोल दिया sexual offenses क्या होते हैं बता ही दो। तो चलिए हम बढ़ रहे हैं sexual offenses की तरफ। Sexual assault. Sexual assault का मतलब होता है when anyone touches you in a way that is wrong and without your permission. ठीक है? Any kind of touching that I feel like is inappropriate, that is counted under sexual assault. इसी के अंदर सब टॉपिक आता है penetrative sexual assault. Penetrative sexual assault is when someone tries to violate your private parts without your consent. And since आप लोग under 18 हो तो आपका consent in the court of law direct वैसे भी नहीं होगा।
चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं किसी पब्लिक गैदरिंग में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मेरे चारों तरफ लोग हैं and I can't avoid there being inside a personal space. Now suddenly I feel like somebody is pressing against me indirectly. तो क्या वाले से कोई मुझे बता सकता है कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? Anyone? Very good. Please handle the mic. Very good. Clapping is very hard. Minimum 10 years से लेके life imprisonment तक हो सकती है। तो always don't. If you are feeling unsafe, if you are feeling uncomfortable, report it because your feelings matter. अब इसी ऑफेंस के अंदर आता है aggravated sexual offense. ये अगर तब होता है जब offender कोई person in power हो, like a teacher, like a police officer, like a minister, anybody from A to Z. Secondly, अगर वो इंसान आपको blackmail कर रहा हो या death threats दे रहा हो, इस ऑफेंस की पनिशमेंट हमारे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस से भी हार्श होगी। अब मिनिमम ऑफ 20 इयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड इवन डेथ पेनल्टी। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन आप सबसे, हमारे यूपी में तो हम सब ऐसे ही रहते हैं, चाचा हमारे विधायक हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि अगर जो अफेक्टर है वो कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान है तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी? यस और नो में जवाब दीजिए। Yes, very right. बहुत अवेयर होना चाहिए। अंडर पॉक्सो एक्ट अगर आप किसी भी स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव की उस स्टेशन का जुरिसडिक्शन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है या नहीं, यानी अगर मैं एक्स जगह पर रहती हूँ और मैंने किसी और स्टेशन पर रिपोर्ट किया तो आपकी रिपोर्ट उसी दिन दर्ज की जाएगी। आपको आपकी रिपोर्ट को फाइल करने से कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी मना नहीं कर सकेगा। दूसरा, जैसे ही आप अपना इंसिडेंट किसी पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे तुरंत ही आपके ऑफेंडर को अरेस्ट कर दिया जाएगा और अगर उसको बेल मिलेगी तो उससे एक हफ्ता पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका ऑफेंडर बेल पर बाहर आ रहा है सुसाइड प्लस से। So this means that our constitution, our government and our lawmakers are very keen in protecting all of us. सिर्फ हिम्मत करनी है और जोर से बोलना है, ठीक है? इतना क्लियर है? आगे बढ़िए। एनी डाउट्स एनीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसे सिमिलर टर्म से बहुत को कंफ्यूज कर देंगे, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट में क्या डिफरेंस है? Sexual harassment is when somebody verbally makes you feel uncomfortable, makes any vulgar gesture towards you, or makes any inappropriate jokes about your private part or of your hormones. ये कुछ भी हो सकता है। एक inappropriate joke जो आपका कोई सीनियर या आपका कोई जूनियर आपके साथ मार रहा हो, या फिर कोई vulgar gestures, anything। क्या कोई किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो मोस्टली हम लोगों का जैसे होता है ठीक है, मजाक नहीं है, बिकॉज वन हू इज साइलेंट इज endangering hundreds that are next to her. इसकी पनिशमेंट भी इजी नहीं है। मिनिमम ऑफ 3 years से लेके 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती है। तो सोशल मीडिया अगर इट इज वेरी कॉमन कि लोग फोटोज पोस्ट करते हैं या आपस में फोटोज एक्सचेंज करते हैं, कैप्शन क्रेडिट्स देते हैं दूसरे लोग ना, अगर कोई अडल्ट आपसे अपनी अडल्ट या माइनर भी आपसे अपनी फोटोज मांगता है कि आप मुझे अपनी बॉडी की पिक्चर क्लिक करके दीजिए, क्यों फोटो क्लिक करके दीजिए, या कोई आपको फोर्स करता है फोटोज क्लिक करके भेजने के लिए आपकी बॉडी की या प्राइवेट पार्ट की, इट इज कॉल्ड यूजिंग चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफी एंड इट इज एन ऑफेंस। इसकी सजा 5 years मिनिमम से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। तो अगर हम सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वी शुड बी वाइज इनफ टू नो कि हमारा कंटेंट कौन देख रहा है और उसे कैसे यूज कर रहा है, ठीक है? तो आई विल जस्ट फिनिश विद रिपीटेड 4 hours जो अभी तक हमने सीखे। आप सब मेरी पीछे रिपीट करेंगे? So first that is respect our body. We will respect our body. We will recognize a bad touch. We need to report any incident that happened with us. So that is we will reassure our friends
जिसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, एंड हम उसे मोटिवेट करेंगे कि नहीं चुप नहीं रहना, वी विल बी बोल्ड, वी विल बी फियर्स, क्योंकि जो ऑफेंडर आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है वो एक बहुत ही कमजोर आदमी है, एंड वी विल नॉट लेट देम हैव द बेस्ट ऑफ इट। ओके, लास्टली, अगर आप लोग कभी भी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप उसे रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने घर पर कंफर्टेबल नहीं है, टीचर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो बाद में भी हम बताएंगे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। किसी को पता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? पता है? वॉइस में हाउ प्रायोरिटी एनीवन वी कैन प्रोवाइड अ माइंड है। खड़े होके बोलो। वेरी गुड। 1098 इज द नंबर, आप उसे भी बोल सकते हैं। I now hand over the mic to Sagar Bhaiya to continue the presentation. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सागर है और अभी तक के डिस्कशन के बाद आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है पॉक्सो। क्या है? गुड। मुझे बहुत एनर्जी दिख रही है, आप मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको जरूर बताऊंगा नहीं, सिर्फ आप सबसे क्वेश्चन ही करूंगा मोस्टली, और पीछे से मुझे उम्मीद है कि पहले से मुझे आंसर्स मिलेंगे, आगे वाली नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ गुड टच एंड वन एग्जांपल ऑफ बैड टच। अब हैंड रेज़ करें, वन एग्जांपल गुड टच का, वन एग्जांपल बैड टच का। अभी आप लोग बताए हैं जस्ट पीछे होता है, आपसे तो बहुत लोग मुझे तो आंसर आना चाहिए। ओके, आप सब बच्चे हाथ उठा रहे हैं, कभी बात को तो नहीं बोलते हैं। ओके, एंड बैड टच? ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपको कुछ बताया गया है, अगर आपको कोई बैड टच करता है तो आपको उसको नो बोलना है। क्या बोलना है? अगर आपको कोई बैड टच करता है तो आपको उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी अपराध कोई करता है, आपको अनकंफर्टेबल फील करवाना है, तो वो खुद में बहुत कमजोर होता है, आपको उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए वो लोग आप ऐसे बच्चों को ही अपने टारगेट कराते हैं। आपको इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी अपने पेरेंट्स को या फिर कोई भी सेल्स सर्कल को या किसी क्लोज रिलेटिव को देनी है। अब फिर से हमने सेल्स सर्कल के अंदर थोड़ी पहले ही बात की थी। सेल्स सर्कल का एग्जाम्पल चाहिए मुझे, चलो पीछे अगर तुम लोग बताओ सेल्स सर्कल का मुझे कोई भी क्या तो एक एग्जाम्पल चाहिए मुझे बस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही आंसर। Example like our parents and grandparents inside our circle. ओके, वेरी गुड, थैंक्स। जस्ट आपकी दोस्ती होती है जितनी हेल्प के साथ है, आप उसके अंदर वो पुलिस करवाने की वो पूरी खबर हेल्प करनी। अब अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा क्या लगता है? जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन? नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। पॉक्सो एक्ट के अंदर आपको ये प्रिविलेज दिया गया है कि पुलिस खुद आपके पास आएगी, चाहे आपके घर में, किसी बाहर में, या जहां पर भी आप बुलाएं, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। अब फिर से मेडिकल की बात आई तो डॉक्टर की बात आएगी। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगवाएगा, बहुत पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका सिर्फ इसलिए होना है ताकि आपकी बॉडी में कोई भी डीएनए मार्क्स हो, किसी भी तरीके का कोई भी मार्क हो उस खतरे का, वो आपके केस को और स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी आइडेंटिटी जो है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उसको कहीं पे भी रिवील नहीं किया जाएगा। तो आपको अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं करनी है, बिकॉज दैट विल बी टोटली सेफ। तो ये तो हमने पहले ऑप्शन की बात है कि जो भी है पुलिस के कैसे अगर लोग डेटा में रजिस्टर करवा रहे हैं। अब दूसरे ऑप्शन क्या पहले से कोई आइडिया है? टोटल 3 ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरा क्या होता है? वेरी गुड, क्या है क्या करने के बाद? वेरी गुड, तो मैंने 10 9 8 क्या है? वेरी गुड।
तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपने घर बैठे सिर्फ कॉल पे आप अपनी कंप्लेंट करवा सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग अपने घर में बैठ कर अपने बेड में आया तो बैठ के लेंगे भाई सो बात कर दी। तो ये तो ऑफर से लिया। अब हम तीसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं जो कि है NCPCR। इसको पता है NCPCR को क्या है? NCPCR is National Commission for Protection of Children's Rights. वेरी करेक्ट। तो NCPCR तो अपनी एक वेबसाइट पर है www.ncpcr.gov.in, जो कि आप यहाँ पर लोग PPT में देख पा रहे हैं। जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जस्ट ऐसा ही आपको एक रेड कलर का बटन रहेगा, इस पे लिखा होगा ई-बॉक्स। आप उस बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद एक पेज जैसा होगा जहाँ पे आपको अपनी छोटी छोटी डिटेल्स, बहुत पेंडिंग डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपका नेम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस और जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है उसको जितनी ज्यादा डिटेल हो सके उतनी ज्यादा डिटेल का आपको बताया है ताकि और अच्छे से आपकी हेल्प हो सके। हॉस्टल बॉक्स पे एक अभी मैं वीडियो चलाएंगे, आप उसको देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल है। तो मेरी जो वीडियो आप देखिए। मैंने मुझे छुआ, मुझे कहा कि तो वो कहने की मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे छूते हैं। और चाइल्ड जनरेशन पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बारे में हमने एक पोस्टर बनाया है जो कि आपके नोटिस बोर्ड पे स्टिक कर दिया जाएगा। आप अगर उस नंबर पे कॉल करते हैं या अगर आपको NCPCR की वेबसाइट एक्सेस करने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, जब चाहे आप हमें नैंगिलियन रोज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब शगन आप बताइए इस स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हेलो मतलब आई, कैसे हो आप लोग? आज किस किस्म में मजा आ रहा है कि नहीं? सबको कैसे समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ मुझे स्कूल में मजा आ गया? And as a law student, it is my privilege to tell you about what are the responsibilities of school under the POCSO Act. अब स्कूल एक ऐसी जगह है जो बच्चों का दुखना खुला होगी, जहाँ पे बच्चे घर से ज्यादा स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। School carries a special legal and moral responsibility under this law. Let me list some of the responsibilities in detail. First, the child protection policy. अब जो नाम है child protection policy, तो बता सकते हैं क्या है? My name is Mansur Sharma and I want to tell about you child protection policy. In child protection policy, if we feel uncomfortable with anyone, we can complain to our parents or grandparents. बिल्कुल सही। ये एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे मतलब गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है फॉर टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड आपके पेरेंट्स को। अब ये गाइडलाइन में ये बता रही है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी हादसा होगा तो उन सारी चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और कहाँ कैसे इसको जाके कंप्लेन किया हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेक प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉर सेक्सुअल अब्यूज। उसमें ये है कि फर्स्ट कंडक्टिंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल स्टाफ including teachers, non-teaching staff, drivers and support. Students के लिए कैसे फॉर्म प्रोसेस जहाँ पे उन्हें ये बताया जाए कि गुड टेस्ट क्या है, बैड टेस्ट क्या है, फिर उसके बाद कैसे अपनी आवाज उठाई जाए और कहाँ कैसे किसको जाके अपनी सारी आगे बढ़ाए। कोई बता सकता है अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो आप उसके पास आओगे? उसके पास आओगे? बिल्कुल है। अब टीचर्स की बात आती है तो टीचर्स को ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो वो सारी चीजें कैसे हैंडल करें और उनको कैसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। और उस वक्त बच्चा बहुत सेल्फिश चेंज हो रहा है तो कैसे बच्चे को आपके स्कूल में कब ये बॉक्स है या सजेशन बॉक्स? अरे हो गया सारे जगह हो गए।
है ना, कहाँ वाले अगर आपके स्कूल में ऐसा नहीं है या फिर है तो आप किसी को भी मतलब अगर है तो आप उसके अंदर अपना वोट डालिए और बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है और आप उसके अंदर वोट डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टीचर है आप उनके पास जा सकते हैं सारी चीजें बताने के। फिर उसके बाद जो बच्चों और टीचर्स के बीच में ना एक बाउंड्री होती है जो किसी को भी क्रॉस नहीं करनी होती, ठीक है। एंड फिर उसके बाद like conduct sensitization workshops for staff and students on child protection and trauma. अब आपको ना एक वीडियो दिखाएंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं 2 साल की हूँ, मुझे मेरा स्कूल शरारत तो मैं भी करती हूँ। कितना अच्छा होता अगर इंडियन पास बच रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लिंक खुला दिखाया चुपके से, बड़ा मजा होगा। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10 I, Kritika in associate of the Pro Board of the University of Colombo, am deeply humbled to express my profound gratitude for entrusting us with the privilege of conducting a poster workshop within your prestigious institution. Your unwavering patronage has empowered us to engage with your students on this pivotal issue, fostering a culture of awareness and sensitivity. Your institution's commitment to cultivating informed, responsible, and empathic citizens is truly exemplary. We are grateful for your facilitation, which enabled us to delve into this critical topic with the very individuals in Northeast to protect. We extend our sincere appreciation to the students for your attentiveness and enthusiastic participation. Your eagerness to learn and grow is a testament to your school's nurturing environment. We are indebted to your institution for its hospitality, collaboration, and dedication to promoting child safety and legal awareness. Your selfless efforts have created a ripple effect inspiring us to continue our mission. Thank you once again for this enriching experience. We eagerly look forward to a future opportunity